Good evening, everybody. Welcome in SS Medical Classes. I am Dr. S.P. Singh, Senior Consultant Dermatologist, Pilibhit Bypass Road, Bareilly. Today, I will discuss insulin. And as you know, insulin is indicated in diabetes mellitus, usually in type 1 diabetes mellitus and occasionally in type 2 diabetes mellitus. So, in this video, we will discuss introduction of insulin and discovery of insulin, structure of insulin and types of insulin and use of insulin, different type of insulins. The insulin was discovered by in 1921 by Canadian scientist Frederick Banting and Charles Best, and the discovery was assisted by a biochemist known as James Collip at the University of Toronto. Now, as we see, this is the diagram. In this diagram, so this is proinsulin. This is precursor of insulin. In proinsulin, there is two chain. Chain A of polypeptide. पॉलीपेप्टाइड की एक चेन ए है एंड दूसरी चेन है चेन बी. ए भी पॉलीपेप्टाइड चेन है. दिस इज चेन बी एंड दिस इज चेन ए, एंड दीज टू चेन्स आर ज्वाइंड बाय सी पेप्टाइड चेन. तो जो बी चेन है, इस बी चेन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 30 अमीनो एसिड्स होते हैं. In chain B, number of amino acid is 30. In chain A, number of amino acid is 21. So in insulin, number of amino acid are 51. It means in insulin there is no C peptide. यानी पिरू इंसुलिन में तो 3 चेन होती हैं. There are 3 chains in पिरू इंसुलिन, चेन A, चेन B and C peptide. तो जब इस पिरो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है तो क्या होता है, ये सी पेप्टाइड चेन डी अटैच हो जाती है. किस पोजीशन पे? एक पोजीशन यहाँ पे और एक पोजीशन यहाँ पे, ये इट बिकम्स डी अटैच. फिर क्या बचता है? केवल 2 चेन बचती हैं, चेन ए और चेन बी. यानी जो सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड, इट इज डी अटैच्ड. ये अलग हो जाती है, इससे केवल 2 चेनें बचती हैं. और ये 2 चेन है इंसुलिन की, with chain A and chain B, these are tightly bonded by disulfide bonds. These are bonded by disulfide bonds. Disulfide bonds. कितने disulfide bonds होते हैं? 3. There are 3 disulfide bonds. 2 bonds between chain and chain B. Number 1, number 2. That is interchain. 2 disulfide bond are interchain, and there is third disulfide bond which is intrachain, and it connects 2 parts of the chain A. Now you can see कि in chain A and chain B, one terminal is amino terminal and other terminal is carboxylic acid. So at one terminal there is a carboxylic acid and other terminal is amino group. So in insulin there are only 2 chain A and chain B. In chain A there is a 21 amino acid and chain B number of amino acid 30. इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो V है, B की स्ट्रक्चर 3 की जगह, B shape of B and
shape of 3 is similar. So we can link this and we can memorize it that in chain B there are 30 amino acids because these are looking similar, and in chain A there are 21 amino acids and total amino acids are 51. So what we have learned? We have learned that this insulin was discovered by Frederick Banting and Charles Best, assisted by a biochemist James Colipe. Now where is insulin formed? फॉर्मेशन कहाँ होगा इंसुलिन का? इन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास. और ये जो प्रोसेस है, द सेपरेशन ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम द इंसुलिन, इट आल्सो occurs in secretory granules ऑफ द बीटा सेल्स. कौन सा एंजाइम चाहिए इसमें? इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है प्रोटीएजेस. डिफरेंट टाइप के प्रोटीएजेस होते हैं दैट सेपरेट्स दिस सी पेप्टाइड. एक प्रोटीएज का नाम है एंडोपेप्टाइडेज. तो दिस इज एंडोपेप्टाइडेज विच क्लीव सी पेप्टाइड. दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड रिलीज्ड इन द सीरम में रिलीज होगी एंड इट इज इन इक्विमोलिकुलर रेशियो, यानी इसका अमाउंट बराबर होगा किसके? अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड. जितना इंसुलिन बनेगा उसके बराबर ही सी पेप्टाइड ब्लड में सीरम में रिलीज होगा. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सी पेप्टाइड? द इम्पोर्टेंस ऑफ सी पेप्टाइड इज दैट from the level of C peptide in the serum we can know what is the amount of insulin which is synthesized endogenously, and it is concentration of C peptide is not affected by the insulin given from the outside. So whatever insulin is given from the outside, there is no change in the concentration of C peptide. And C peptide, what is the normal value? Normal value is 0.222 nanogram per ml. This is fasting value, and it is more after meal. So if there is a increased level of C peptide in the serum, it may be indicative of insulinoma. Pancreatic tumor है insulinoma, in which insulin secretion is increased too much and there is a dangerously fasting hypoglycemia. कैसे डायग्नोसिस होगी इंसुलिनोमा की? हम क्या कराएंगे? सी पेप्टाइड कराएंगे, लेवल ऑफ सी पेप्टाइड इन द सीरम. तो सी पेप्टाइड इन द सीरम में भी 0.925 नैनोग्राम पर ml. अगर इससे भी ज्यादा है फास्टिंग, तो देयर इज अ सजेस्टिव ऑफ इंसुलिनोमा. नाउ इन दिस डायग्राम we see this is pro insulin, chain B, chain A, and this is C peptide chain. And when insulin is formed from the pre-insulin, then this is insulin, and this is C peptide. Now we will discuss types of insulin. So insulins are classified according to onset of action, कितनी देर में उसका एक्शन शुरू होता है, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और कितनी देर तक इंसुलिन का इफेक्ट रहता है. दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन. तो ऑन दिस बेसिस फर्स्ट वी विल डिस्कस रैपिड एक्टिंग इंसुलिन.
or fast acting insulin. These are human insulin analog. जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन डेवलप किए गए हैं, पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आते थे, अभी भी आते हैं, तो इनसे हमें बनाया वो जो ह्यूमन इंसुलिन है, इनसे डेवलप किए गए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और फास्ट एक्टिंग इंसुलिन, एंड दीज आर ह्यूमन इंसुलिन एनालॉग। क्या मतलब हुआ इस चीज का? इस चीज का क्या मतलब हुआ? इस चीज का मतलब हुआ, जैसे अगर हम देखें इंसुलिन, इसका टाइप है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसका टाइप है इंसुलिन लिस्प्रो। एक इंसुलिन लिस्प्रो होता है, क्या होता है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसका एक टाइप है इंसुलिन लिस्प्रो, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसका एक टाइप है इंसुलिन लिस्प्रो। ये इंसुलिन कैसे बना? ह्यूमन इंसुलिन लिया, ह्यूमन इंसुलिन, आपको पता है ह्यूमन इंसुलिन में देयर इज ए चैन ए एंड चैन बी, चैन बी, 21 amino acid in chain A and 30 amino acid in chain B, and this is C terminal and this is amino terminal. तो अमीनो एसिड नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अमीनो एसिड नंबर 28 and this is amino acid number 29. In insulin lispro what happens कि 28 पोजीशन पे क्या होता है? प्रोलीन, और 29 पे क्या होता है? देयर इज ए लाइसिन। तो इन ह्यूमन इंसुलिन these the position of these amino acid changed. When the position of these amino acid changed, that is lysine came on at position 21 and proline at 29. तो इससे क्या चेंज हुआ? जो एक इंसुलिन में एक प्रॉपर्टी होती है हेक्सामर बनाने की, देयर इज ए प्रॉपर्टी इन हेक्सामर, डेवलप करने की टेंडेंसी होती है या यूनाइट करने की टेंडेंसी होती है, डाइमर और हेक्सामर बनाने की टेंडेंसी होती है, और इसी की वजह से क्या होता है? इनका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। तो जो हेक्सामर बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या हुई? डिक्रीज हो गई, डिक्रीज, और इसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। सो इन इंसुलिन लिस्प्रो ड्यू टू दिस चेंजेस rate of absorption was increased and this become rapid acting insulin, rapid acting insulin. So this is insulin lispro, brand इसका नाम है Humalog, brand is Humalog. In 28 and 29 amino acid residue of beta chain of human insulin at C terminus, proline यानी B28 and lysine B29 are interchanged and decreases tendency to form hexamer. जो हेक्सामर बनाने की टेंडेंसी थी ये क्या हुई? डिक्रीज हो गई। इससे क्या हुआ? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हेन वी गिव इंसुलिन सबक्यूटेनियसली तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन शॉर्ट हो गया, ऑनसेट ऑफ एक्शन शॉर्ट, जो इंसुलिन जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा उसका रेट ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन उतना ही कम होगा। सो दीज बिकम्स रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होगा ये, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। एंड नेक्स्ट इज इंसुलिन एस्पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का है इंसुलिन एस्पार्ट, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसका ब्रांड नेम है नोवो रैपिड, ब्रांड नेम इज नोवो रैपिड। तो एट सी टर्मिनस ऑफ बीटा चेन एट 28 amino acid residue, purine is replaced by aspartic acid. So this is also human
insulin analog. Insulin aspart is also human insulin analog. And third one is insulin glulisine. The brand name of insulin glulisine is Apidra, and this is also rapid acting insulin. Now, तो अब तक हमने क्या सीखा? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन लिस्प्रो and insulin aspart and insulin glulisine. These are example of insulin lispro. The brand name of insulin lispro is Humalog. Brand name of insulin aspart is Novorapid, and brand name of insulin glulisine is Apidra. Now we will discuss ultra rapid acting insulin. जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, इनसे भी जल्दी जो इनका एक्शन स्टार्ट होता है, यानी ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकम्स टू मच शॉर्ट एज कंपेयर टू रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. दीज आर कॉल्ड अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. यानी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में कुछ चेंज किया, इससे उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो कम हो गया और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और बढ़ा. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फास्टर एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट. जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन था उसका नाम था इंसुलिन एस्पार्ट, इसका नाम हो गया फास्टर एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट या फास्टर एस्पार्ट. इसमें क्या किया? ये सेम है, सेम एज इंसुलिन एस्पार्ट बट फॉर्मुलेटेड विद निकोटिनामाइड फॉर फास्टर एब्जॉर्प्शन. निकोटिनामाइड के साथ फॉर्मुलेटेड करने से क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन बढ़ा. एंड अमीनो एसिड L-arginine टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी. इसका ब्रांड नेम इज Fiasp. Brand name is Fiasp. And onset of action is 5 to 10 minutes. Peak 1 to 2 hours. And duration of action is 4 to 5 hours. तो जितने भी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है तो उनका जो onset of action, है it is between 15 to 30 minutes. 15 minutes and peak becomes 1 hour and 1 to 2 hours and ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 4 to 5 आवर. तो जितने भी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उनमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है? 4 to 5 आवर. पीक इज 1 आवर एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 मिनट. जो अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है इनमें ऑनसेट ऑफ एक्शन 5 to 10 मिनट, पीक 1 to 2 आवर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सेम जितना उनका था. तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फास्टर एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट और फास्टर एस्पार्ट. ब्रांड नेम इज फियास्प. एंड नेक्स्ट इज अल्ट्रा रैपिड इंसुलिन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसुलिन लिस्प्रो. जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन था उसमें था इंसुलिन लिस्प्रो, लेकिन इसका पूरा नाम है इंसुलिन लिस्प्रो AABC. शॉर्ट में लिखेंगे अल्ट्रा URLI, यानी U फॉर अल्ट्रा, R फॉर रैपिड, L फॉर लिस्प्रो, I फॉर इंसुलिन. तो दिस इज अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. ब्रांड नेम इज लाइउमजाब. इसका ब्रांड नेम है लाइउमजाब. इसमें क्या है? वही इंसुलिन लिस्प्रो क्या है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है. तो इंसुलिन लिस्प्रो को इसमें क्या मिला दिया? ट्रेस प्रोस्टिनिल. इट इज फॉर्मुलेटेड विद ट्रेस प्रोस्टिनिल. इससे क्या हुआ? इससे इंक्रीज हुआ एब्जॉर्प्शन. कैसे इंक्रीज हुआ? बाय वैसोडाइलेशन. और दूसरी चीज क्या मिलाई? साइट्रेट से क्या हुआ? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन बाय परमेबिलिटी. तो ट्रेस प्रोस्टिनिल मिलाने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, साइट्रेट मिलाने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ.
ट्रेस प्रोस्टिनिन मिलाने से वैसोडाइलेटेशन होता है और साइटेट मिलाने से क्या होता है, परमिटिविटी बढ़ती है। तो इंसुलिन लिस्प्रो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन था, ये क्या बन गया, ये बन गया अल्ट्रा रैपिड इंसुलिन। तो देयर आर टू एग्जांपल ऑफ अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। कौन कौन से दो एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल हैं। नंबर एक, फास्टर एस्पार्टेट, उसको कहते हैं फास्टर एस्पार्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है फास्ट एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट। ठीक, एक तो ये हो गया। ब्रांड नेम क्या है इसका, फियास, फियास, ये ब्रांड नेम। दूसरा इसका एग्जाम्पल है अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन लिस्प्रो AABC, शॉर्ट में इसको बोलेंगे अल्ट्रा रैपिड लिस्प्रो इंसुलिन आई। इसका क्या ब्रांड नेम है, लाई ओमजा। ठीक, दिस इज ब्रांड नेम ऑफ दिस इंसुलिन। नाउ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो हमारी कन्वेंशनल यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इससे पहले हमने क्या पढ़े, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये दो थे, ये तीन थे। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं या प्लेन इंसुलिन भी कहते हैं, इसे हम सॉल्युबल इंसुलिन कहते हैं, और ब्रांड नेम इज एक्ट्रापिड। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आल्सो नोन एज प्लेन इंसुलिन, सॉल्युबल इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट टू 1 आवर, पीक इज 2 to 4 आवर एंड एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इज 4 to 6 आवर, एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इज 4 to 2 आवर। तो मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस हुआ जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, दिस वाज वेरी लेस इन केसेस ऑफ अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, बाकी लगभग सारी चीजें वही हैं। एंड नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को हम क्या बोलेंगे, NPH। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPH, न्यूट्रल प्रोटामीन हेजेडॉन। न्यूट्रल इसलिए बोलेंगे कि इसका जो पीएच है वो 0 है। अब जो ह्यूमन इंसुलिन था, ह्यूमन इंसुलिन में क्या किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स क्रिश्चियन, चार्ल्स क्रिश्चियन हेजेडॉन, हेजेडॉन। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा कि जब हम ह्यूमन इंसुलिन में प्रोटामीन प्रोटीन मिला देते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है और इसका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होने से जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से इस इंसुलिन का नाम, जिसमें कि प्रोटामीन को ऐड किया गया था, उसका नाम रखा है NPH। और ये न्यूट्रल था, इसमें प्रोटामीन ऐड किया गया था, और हैज, एज का मतलब है हेजेडॉन, उन साइंटिस्ट के सम्मान में नाम रखा है हेजेडॉन। तो NPH न्यूट्रल प्रोटामीन हेजेडॉन, न्यूट्रल माने पीएच न्यूट्रल, प्रोटामीन प्रोटामीन्स क्योंकि प्रोटीन प्रोटामीन ऐड है इसमें, हेजेडॉन माने साइंटिस्ट का नाम। दिस इज आल्सो नोन एज आइसोफेन इंसुलिन। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज 2 to 3 आवर, 2 to 3 आवर, पीक इज 6 to 8 आवर एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 12 to 18 आवर। So this is intermediate acting insulin। इन्होंने ये काम कब किया था, 1946 में, 1946। तो हु डिस्कवर्ड NPH, चार्ल्स क्रिश्चियन हेजेडॉन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रल प्रोटामीन हेजेडॉन। नाउ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में क्या है,
there are 3 Datamil, brand name is Lamivir, and Glargine, brand name is Lantus, and Degludec, brand name is Tresiva, brand name is Tresiva. So जितने ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, इनका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है, जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन कितना है 24 आवर, और ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है 2 to 4 आवर. सो अगर हम ग्राफ लेते हैं, सो दिस इज ये ऐसा मिलता है इनका, ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है. सो ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर एंड एक्शन ऑफ ड्यूरेशन इज 24 आवर. एंड सबसे बड़ी बात है इसमें, देयर इज नो पीक, एंड दे आर टेकन एट बेड टाइम. एंड नेक्स्ट टाइप की इंसुलिन है which are taken by inhalation. This is called Afrezza. This is present in the powder, and with the help of machine, this is inhaled and it is absorbed by the lung. And this is very fast acting, rapid acting insulin. It acts as a rapid acting insulin. अब now हाउ नाउ यूजेज ऑफ इंसुलिन. अगर कितनी डोज हमें देनी है इंसुलिन की, किस बात पर डिपेंड करेगी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करेगी. इफ अ पर्सन हैविंग फिजिकली एक्टिव, जितना वो मेहनत का काम करेगा, जितना फिजिकल वर्क करेगा, उतनी ही डोज उससे कम चाहिए होगी. और यदि इंसुलिन डोज उसने फिक्स्ड अमाउंट लिया है, और अगर किसी उसने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर दी किसी भी वजह से, देन ही और सी में डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट, आल्सो डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ डाइट. उसको कितनी रोटियां खानी है, कितना चावल खाना है, क्या क्या खाना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है. सो डोज इज नॉट फिक्स्ड. इफ we see body weight, then we can calculate dose 0.2 to 0.4 यूनिट पर केजी पर डे. तो जितने भी हमने डोज ली है, हमने कैलकुलेट कर लिया. इसकी जो 50% है वो तो हम देते हैं लॉन्ग एक्टिंग बेसल बोलस इंजेक्शन के रूप में, इसकी 50%. तो जो हमने अभी पढ़े थे, चाहे हम लेंटस दे दें उसको, ग्लार्जिन दे दें, चाहे हम उसको लेमिविर दे दें. लेमिविर में क्या है, डीटेमिर है, और चाहे हम उसको डेग्लूटेक दे दें, ठीक है, ट्रेसिवा दे दें. तो 50% तो हम ये देते हैं नाइट में, और बाकी जितनी बार वो मील लेगा, उस मील में हम क्या देंगे उसको, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देंगे, या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देंगे, या तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देंगे, या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देंगे, और या अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देंगे. तो ये तो हमने बेसल बोलस डोज दे दी किसकी, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की. और हम क्या देंगे उसको, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन. इसकी डोज नॉर्मली अगर हम एक रोटी खाते हैं तो 2 से 3 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी. तो यदि कोई 3 रोटी खाता है तो उसे 9 से 12 यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी. तो प्रत्येक टाइम हम इसको लेते हैं. कब लेंगे, हम कब लेना चाहिए, सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए हमारा इंसुलिन ग्लूकोज लेवल कितना है. अगर ग्लूकोज लेवल बहुत बड़ा हुआ है तो पहले तो हम उसको करेक्शन करेंगे. जैसे मान लीजिए हमारा ग्लूकोज लेवल 250 है, तो उसके लिए हम 2 यूनिट एक्स्ट्रा लेंगे. बाकी प्लस जितना हम मील खाना है उसके हिसाब से जोड़ेंगे, कितनी रोटी खाइए, कितने खाना है. अगर 3 रोटी खानी है तो हम इसका 2 से 3 यूनिट, 2 माने सबसे पहले मिनिमम लेते हैं, 2 + 2 + 2 6 यूनिट लगाएंगे उसको. और प्लस जो हमने कैलकुलेट किया है, जितना भी कैलकुलेट किया होगा उसका 50% बेसल देंगे लॉन्ग एक्टिंग.
तो इतना हमें हर मील में देना है। यदि हम खाना कम या ज़्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम ज़्यादा करते हैं, तो हमें इसको अपना बढ़ा लेना है और हमें 2 घंटे बाद मीजर करना है। जब हम स्टार्ट करते हैं इंसुलिन लेना तो हमें बहुत ही फ्रिक्वेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है। फिर हमें बाद में ये पता चल जाता है कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना होगा। सो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया माने डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, इसके चांसेस हमेशा रहते हैं। सो इंसुलिन लेने के और मील लेने के 2 घंटे बाद हमें अपना ब्लड शुगर करना चाहिए। दिस शुड बी 160 एंड 180। 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 160 से कम नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जिसको भी डायबिटीज़ हो उसके पास एक बैग होना चाहिए। उसके बैग में एक ग्लूकॉन डी रहना चाहिए, एक स्पून रहना चाहिए और ग्लूकोमीटर होना चाहिए। अगर उसे जब भी फील हो रहा है कि हमें कोई भी अनयूजुअल सिम्टम फील हो तो उसको अपना ब्लड ग्लूकोज ले लेना चाहिए। और जैसे ही अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगी, हाइपोग्लाइसीमिया का क्या सिम्टम होंगे? हार्ट बीट बढ़ेगी, घबराहट होगी, वीकनेस होगी, स्वेटिंग होगी। अगर ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, उसे अपना ब्लड शुगर करके तुरंत उसको ग्लूकोज ले लेना चाहिए। अदरवाइज हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया kills patient more easily and rapidly than hyperglycemia। हाइपरग्लाइसीमिया में डेथ नहीं होती है, लेकिन हाइपो में बहुत ही फ्रिक्वेंट डेथ होती है। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। So this is all about insulin and uses of insulin, structure of insulin, discovery of insulin, and if this knowledge is useful for you, then please like and subscribe to the channel. Like and subscribe this channel so that you will get notification with time. And इसी के साथ ही too much thank you to all listeners.